Okay, so this is our first video of second paper, and we are starting a new play, that is Macbeth, written by William Shakespeare. You must have heard the name of William Shakespeare. This is one of the greatest name in English literature, and you might know so many points about William Shakespeare, like he has written a total of 37 plays, and there is a sonnet cycle written by him. In that 154 sonnets he has written, and other than that you must have heard so many other points, but we will come to all these points. But before that we have to study the original text of this play, and then after studying the original text you will get so many ideas, like what kind of writing William Shakespeare was writing, or what kind of language he was using. So these kinds of points or these kinds of things you will understand after reading the original text of the play. And after reading the original text we will analyze based on so many things, like all the critical things, what kind of language he has used, what kind of literary language or literary techniques he has used, or what are the message given in the play, or what are the tools and techniques used by the playwright. So these are the things we will discuss, but before that we have to study the original text of the play Macbeth. And there is a movie also based on the play. I think the movie name is Maqbool. I'm not sure about the name, but I think there is a movie based on Macbeth. I will suggest you that name. You can watch that movie also. So there are 5 acts in the play: Act 1, Act 2, Act 3, 4, 5, and in each of the acts there are so many scenes. And before going to the play we have to understand the characters used in the play. So first of all we will see there is a king of Scotland. His name is Duncan. So there is a person, he is a king of Scotland, and his name is Duncan. So King Duncan is there, and there are 2 sons he has, like Malcolm is there. Malcolm is the elder son of King Duncan, and Donalbain is the younger son of King Duncan. तो राजा जो डंकन है उनके 2 बेटे हैं, पहला मैलकॉम जो कि बड़ा बेटा है, और दूसरा डोनाल्डबेन जो कि छोटा बेटा है. देन कम्स थाने. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ थाने. व्हाट इज थाने? तो थाने का कॉन्सेप्ट हम लोगों के यहाँ नहीं चलता है, यहाँ पे कुछ और बोला जाता होगा, लेकिन खास करके यूरोप में जो थाने का कॉन्सेप्ट है वो चलता है. थाने क्या होता है? जैसे कि राजा है, ठीक है. अब राजा अपने अंदर बहुत सारे सेनापति को रखता है, या फिर बहुत सारे अलग अलग तरीके के अधिकारी को रखता है, और बेसिकली इनका कार्य ये होता है कि जब कोई दूसरा आदमी उस राज्य पे अटैक करे तो राजा खुद उससे युद्ध करने ना जाए, बल्कि उसने जो बहुत सारे सेनापति बना रखे हैं, या फिर उसने जो बहुत सारे लोगों को अपने अंदर रखा है, वो सारे लोग जाएंगे और उस थर्ड पर्सन से युद्ध करेंगे. तो वहाँ पे थाने का कॉन्सेप्ट आता है. थाने का कॉन्सेप्ट ये है कि राजा अपने अंदर एक आदमी को रखता है, या फिर मान लेते हैं 10 आदमी को रखता है, या फिर राजा को जितना मन उतना आदमी को रखता है, और उसको कहता है कि लो ये एरिया मैंने तुमको दे दिया. मान लेते हैं ये गांव तुमको दे दिया, ये पूरा गांव तुम्हारा है, तुम इस गांव पे शासन करो, यहाँ पे जितनी भी ज़मीन है तुम उस पर खेती करवाओ, और बदले में जब मुझे ज़रूरत होगी तुम्हारी, जब कभी कोई मुझ पर अटैक करेगा या फिर कभी युद्ध करने की बात आएगी, तो तुम मेरे तरफ से जाना और उस व्यक्ति से युद्ध करना. तो थाने का कॉन्सेप्ट यही था. तो यहाँ पे इस प्ले के अंदर 3 थाने का जिक्र आता है, यानी कि 3 व्यक्ति हैं. सबसे पहला है मैकबेथ जो कि एक थाने होता है, फिर दूसरा एक व्यक्ति है मैकडफ, ये भी एक थाने होता है, तीसरा व्यक्ति है बैंको, ये भी एक थाने है. तो इससे ज़्यादा भी थाने हैं जो अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों को बनाया गया है, उनको कुछ ज़मींदारी दी गई है. बेसिकली अगर हम लोग कहें तो उस ज़मींदारी पे वो बहुत सारे लोगों से अपना मजदूरी करवाएगा या फिर किसी तरीके से खेती करवाएगा, और उस छोटे से एरिया पे वो एक तरीके से कह लो शासन करेगा. और जब भी राजा को ज़रूरत पड़ेगी तो वो राजा के पक्ष में या फिर राजा के तरफ से युद्ध करने के लिए जाएगा. तो ये सारे कैरेक्टर यहाँ पे, हालांकि बैंको का एक बेटा होता है फ्लियंस,
ये भी इस प्ले में आता है, और मैकबेथ की जो वाइफ है मिसेज मैकबेथ वो भी इस प्ले में हमें देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पे हमें एक और जो कैरेक्टर देखने को मिलता है ये है सिवॉर्ड। सिवॉर्ड कौन है? ये जनरल है इंग्लिश फोर्स का। यहाँ पे देखो ये सारी जो लोग हैं ये स्कॉटलैंड के हैं। स्कॉटलैंड अलग है, इंग्लैंड अलग है, आयरलैंड अलग है, नॉर्वे अलग है। ये सारे अलग अलग रीजन हैं या फिर जगह हैं जिसका जिक्र हमें कई बार देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो मेन कैरेक्टर हैं ये स्कॉटलैंड के हैं, ठीक है। डंकन हो गया, इसका दोनों बेटा हो गया, मैकबेथ हो गया, मैकडफ, बैंको, ये सब कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के हैं। वहीं पे जो हमारा दूसरा एक कैरेक्टर है सिवॉर्ड, वो इंग्लैंड का है और ये जनरल है। इंग्लैंड का जो फोर्स है उसका वो जनरल है। तो ये सारे आपके कैरेक्टर्स हो गए। अब यहाँ पे कुछ और भी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे लेनॉक्स हो गया, रॉस हो गया, मेंटिथ हो गया, अंगस हो गया, कैथनेस हो गए। ये सब क्या है? नोबलमैन ऑफ स्कॉटलैंड। यानी कि नोबलमैन कहने का मतलब कि अलग अलग विभाग के अलग अलग अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। तो इन लोगों को हम लोग कह सकते हैं कि ये सारे जो हैं सो ऑफिसर्स हैं स्कॉटलैंड के। नोबलमैन हैं लेनॉक्स, रॉस, मेंटिथ, ये सब क्या है? वहाँ के ऑफिसर्स हैं। ओके, तो जहाँ पे जैसे जैसे कैरेक्टर का जिक्र आएगा मैं आपको बताते जाऊँगा कि ये कैरेक्टर कौन है, अगर कोई नया कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है तो। और यहाँ पे जो एक कैरेक्टर है सिवॉर्ड, ऊपर में हम लोगों ने देखा ये जनरल है इंग्लैंड का, नॉर्थम्बरलैंड का, ठीक है। एंड अच्छा, यहाँ पे जो एक वर्ड आ रहा है अर्ल, ये भी आपको कई जगह पे सुनने को मिलेगा। जैसे अभी आप लोगों ने थाने को समझा, वैसे ही अभी हम लोग अर्ल को भी समझते हैं। तो ये आखिर अर्ल है कौन और अर्ल का मतलब क्या होता है, ये ज़रा सा देख लेते हैं। तो अर्ल का मतलब होता है एन ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर विद इन देयर रीजन। अब जैसे मान लेते हैं अभी जो जैसे आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते होगे, उस डिस्ट्रिक्ट में एक डीसी होता है। डीसी होता है कहने का मतलब कि जिला पदाधिकारी होता है, जिसको उस पूरे ज़िले के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उसको संभालना होता है। मतलब उस ज़िले के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए, उस चीज़ को संभालने के लिए उस जिला में एक जिला पदाधिकारी दिया जाता है। वैसे ही अर्ल का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता है। अर्ल जो है सो राजा के द्वारा एक निर्धारित किया गया व्यक्ति होता है, जिसको एक खास क्षेत्र दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि इस क्षेत्र में आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो कि मतलब शांति व्यवस्था वहाँ पे बना रहना चाहिए। तो ये होता है अर्ल। अर्ल और थाने में अंतर होता है। अर्ल जो है सो एक बड़े एरिया के लिए होता है, मतलब कि एक बड़ा सा एरिया अर्ल को दिया जाता है और इसका मेन काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। वहीं पे जो थाने होता है उसका मेन काम होता है उसको कुछ ज़मीन दे दी जाती है या फिर कुछ प्रॉपर्टी दे दी जाती है और उसको कहा जाता है ये प्रॉपर्टी आपका है, आप इसको जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो और मतलब अपना लाइफ जियो उस पर बेस्ड। जैसे मान लेते हैं कि 50 बीघा का एक प्लॉट दे दिया गया थाने को और कहा गया कि आप इस 50 बीघे के प्लॉट पे जो चाहो खेती करो या करवाओ, जैसे रहना है आपको उस पर रहो। तो ये होता है थाने, जबकि अर्ल होता है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। और ये जो अर्ल है ये साथ ही साथ क्या है, जनरल भी है इंग्लिश फोर्स का। मतलब देखो इंग्लैंड के अंदर एक छोटा सा जगह होगा नॉर्थम्बरलैंड, उसका इसको अर्ल बना दिया गया है सिवॉर्ड को। और साथ ही साथ ये एक और काम करता है कि जो फोर्स है इंग्लिश फोर्स है उसका ये जनरल है। जनरल मतलब सेनापति है, ठीक है। इसका एक बेटा है यंग सिवॉर्ड, सेटन ये अटेंडेंट है मैकबेथ का। तो इस तरीके से कुछ छोटी मोटी कैरेक्टर्स हैं जो हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ओरिजिनल टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एक्ट में जो पहला सीन होता है इसका लोकेशन क्या है, अ डेजर्ट प्लेस। डेजर्ट प्लेस, डेजर्ट प्लेस का मतलब कि एक ऐसी जगह जो मतलब रेगिस्तान जैसा है, बंजर भूमि है वहाँ पे। तो वैसे जगह पे ये सीन है। सीन क्या है, थंडर एंड लाइटनिंग इंटर 3 विचेस। देखो ये जो बंजर भूमि है यहाँ पे थंडर एंड लाइटनिंग हो रही है, बहुत सारे बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। एक तो बंजर भूमि, ऊपर से वहाँ पे बिजली चमक रही है, बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं। मतलब कि एक तरीके से कह लो कि बहुत ही निगेटिव सेटअप बना के रखा गया है। जो ग्रोटेस्क इन्वायरमेंट होता है वो बना के रखा गया है। ग्रोटेस्क इन्वायरमेंट कहने का मतलब क्या, जैसे आप भूतिया मूवी देखोगे, गॉथिक मूवी देखोगे, तो उसमें क्या होता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डार्क एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है। जैसे अंधेरा होगा, अंधेरे में बिजली चमक रही होगी, बादल गरज रहे होंगे, तो इस तरीके की चीज़ों का वहाँ पे
गॉथिक मूवीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, हॉरर मूवीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ वैसा ही इफ़ेक्ट यहाँ पे डालने के लिए जो ऑथर हैं वो यहाँ पे कहते हैं कि एक डेजर्ट प्लेस है, मतलब एक तो बंजर भूमि है और ऊपर से वहाँ पे थंडर हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, मतलब बादल गरज रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा बिजली चमक रही है, ये सब हो रहा है बैकग्राउंड में। तभी वहाँ पे स्टेज पे आती हैं कौन? 3 विचेस। 3 विचेस मतलब क्या? 3 चुड़ैल आती हैं स्टेज पे। अब चुड़ैल आप समझ सकते हो कैसी दिखती होंगी। तो ये तीनों चुड़ैल, अब ऑब्वियसली ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया है, बहुत ही निगेटिव इन्वायरमेंट या फिर डार्क इन्वायरमेंट बनाया गया है, सेटअप किया गया है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में कौन आएगा? चुड़ैल ही आएगी। तो यहाँ पे 3 चुड़ैल आती है स्टेज पे, ठीक है। ये तीनों चुड़ैल आपस में बातें करती हैं। पहली चुड़ैल है, कहती है When shall we 3 meet again in thunder, lightning और in rain। यहाँ पे देखो जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया उस पर जरा सा गौर करो। ये ओरिजिनल लैंग्वेज है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा इस्तेमाल किया गया, इसमें कोई भी ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है। तो जो फर्स्ट विच है वो कहती है When shall we 3 meet again in thunder, lightning और in rain, कि हम लोग दोबारा कब मिलेंगे, हम जो तीनों चुड़ैल हैं हम लोग दोबारा से कब मिलेंगे। इन थंडर, लाइटनिंग और इन रेन, जब बादल गरज रहा होगा, जब बिजली चमक रही होगी या फिर जब बारिश हो रहा होगा, आखिर हम लोग कब मिलेंगे, वो कौन सा सेटअप होगा, हम लोग कैसे माहौल में मिलेंगे। ये तीनों आपस में बातें कर रही हैं, ठीक है। अभी अभी तो तीनों आए हैं स्टेज पर और तीनों दोबारा से मिलने की बातें कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा फनी है। तो दूसरी विच कहती है When the हर्ली बर्ली इज डन। हर्ली बर्ली क्या होता है? हर्ली बर्ली का मतलब होता है जैसे कि जो युद्ध चल रहा है, जब उस युद्ध में पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी, जब ये युद्ध का नॉइज जो है सो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, तब हम तीनों जो है सो दोबारा से मिलेंगे। तो हर्ली बर्ली इज डन मतलब यहाँ पे लग रहा है कि कुछ एक युद्ध है जो वहाँ पर चल रहा है, जिसके बारे में ऑथर ने अभी तक आपको बताया नहीं है। अभी तो प्ले स्टार्ट ही हुआ है, ऑथर आपको क्या ही बताएगा युद्ध के बारे में। तो ये तीनों चुड़ैल आपको बता रही हैं कि जब वहाँ पे जो युद्ध चल रहा है, जब वो युद्ध समाप्त हो जाएगा, तब जो है सो ये तीनों चुड़ैल आपस में मिलेंगी। When the battle is lost and won। और फिर अगले सेंटेंस में ये कहती हैं, देखो When the hurly burly is done, when the battle is lost and won। यहाँ पे दोनों का जरा सा राइम देखने की आप कोशिश करो। When the hurly burly is done, when the battle is lost and won। तो डन, वन, इस तरीके की लैंग्वेज का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, मतलब थोड़ा सा रिदमिक इफेक्ट या फिर राइम बनाने की कोशिश की गई है ऑथर के द्वारा। और हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि पोइटिक लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया है। जब प्रोज लैंग्वेज का अगर इस्तेमाल होता तो इस तरीके के पोइटिक इफेक्ट हम लोग को देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे जो राइम बनाया जा रहा है ये राइम नहीं होता, एक ही सेंटेंस में पूरी बात कही जाती, लेकिन यहाँ पे जानबूझ के पोइटिक लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया है। और जब आप लोग ड्रामा का हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप लोग ये देखोगे कि जब ड्रामा स्टार्ट हुआ था तब उस समय पर पोइटिक लैंग्वेजेस का ही इस्तेमाल हो रहा था। जानबूझ के जितने भी ड्रामा लिखे जाते थे वो उन सभी का जो लैंग्वेज होता था वो पोइटिक लैंग्वेज ही होता था। और स्टार्टिंग में लिटरेचर का मतलब ही पोइट्री होता था, बाद में हम लोग प्रोज की तरफ बढ़े, नॉवेल की तरफ बढ़े। इवन कुछ नॉवेल्स भी हैं जो पोइट्री के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, जैसे विक्रम सेठ की एक नॉवेल है जो पूरा का पूरा वर्स फॉर्मेट में लिखा गया, यानी कि पोइटिक लैंग्वेज में वो लिखा गया है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो यहाँ पे भी पोइटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो सेकंड विच हैं ये कहती हैं कि जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तब हम तीनों मिलेंगे। ये जो युद्ध चल रहा है उसमें कोई हार जाएगा, कोई जीत जाएगा, तब हम तीनों दोबारा से मिलेंगे। तो थर्ड विच कहती हैं दैट विल बी ईर द सेट ऑफ सन। तो तीसरी विच कहती हैं कि ये जो युद्ध समाप्त होगा ये कब समाप्त होगा, कि आज शाम में जब सूर्यास्त होगा उससे पहले जो है युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो पहली विच कहती है वेयर द प्लेस, कि आखिर वो जगह कहाँ होगा हम लोग जब तीनों मिलेंगे। अब युद्ध तो समाप्त हो जाएगा शाम से पहले, लेकिन वो जगह कहाँ होगा जब हम लोग तीनों आपस में मिलेंगे। तो सेकंड विच कहती है अपॉन द हीथ। अपॉन द हीथ मतलब कि जहाँ पे बंजर भूमि होगा वहाँ पे हम लोग मिलेंगे। तो तीसरी विच कहती है देयर टू मीट विथ मैकबेथ, कि बंजर भूमि के पास ये तीनों मिलेंगी। लेकिन मिलेंगी क्यों, पर्पस क्या है तीनों का मिलने का आपस में, कुछ तो मोटिव होगा। क्या ये तीनों मिलकर आपस में गपास्टिंग करेंगी, मतलब कि फालतू की बातें करेंगी, या फिर कुछ खास पर्पस है इसका। तो तीसरी जो विच है वो कहती है कि मैकबेथ से मिलने के लिए ये तीनों जो है सो उस जगह पे आएंगी। तो फर्स्ट विच कहती है आई कम ग्रे मालकिन।
अब देखो ये तीनों जो विच हैं जो स्टेज पे आई हैं, तीनों इसी पर्पज़ से स्टेज पे आई हैं कि तीनों आपस में डिस्कस कर सकें कि अगली बार कब मिलेंगी, क्यों मिलेंगी, ठीक है। और ये जब डिस्कशन पूरा हो गया है तभी जो पहली विच है वो जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो कहती है आई कम ग्रे मालकिन। ग्रे मैलकिन, ग्रे मैलकिन क्या है? अब देखो जो विच है उसका अपना एक स्पिरिट होता है, एक आत्मा होता है, मतलब एक तरीके से कह लो ऑनर होता है या फिर आत्मा होता है। तो ये जो पहली विच है ये कहती है कि आई कम ग्रे मैलकिन, कि ग्रे मैलकिन मैं आ रही हूँ, मतलब मेरा मीटिंग समाप्त हो गया है, मैं वापस आ रही हूँ। तो यहाँ पे जो ग्रे मैलकिन है उसका मतलब होता है ग्रे कैट, एक ग्रे कलर का जो है सो कैट है, उसको बोला गया है ग्रे मैलकिन। तो ये जो पहली विच है इसके बारे में ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो स्पिरिट है, आत्मा है, वो ग्रे कैट का है, ठीक है। तो सेकंड विच कहती है पैडक कॉल्स, कि मुझे भी पैडक बुला रहा है, मैं भी जा रही हूँ। पैडक का मतलब क्या है? एक छोटा सा फील्ड जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, ठीक है। और तीसरा विच है ये कहती है एनन, यानी कि मैं भी आ रही हूँ। तीनों को कोई ना कोई बुला रहा है, मतलब तीनों का जो मालिक है या फिर स्थान है वो इसको बुला रहा है, और तीनों जो है सो वापस अपने अपने जगह जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। अब आप इसमें अपना लॉजिक खोज रहे होगे कि ये क्या लॉजिक है, पैडक बुला रहा है, ग्रे मैलकिन बुला रहा है। तो लॉजिक कुछ नहीं है, सिंपली एक स्पिरिट है, विच है, उसका अपना एक आत्मा है, वो आत्मा किसी एक चीज़ से जुड़ा हुआ होगा। जैसे अक्सर आप लोग मूवीज़ वगैरह देखते हो तो मूवीज़ में एक चीज़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे कुछ भूत प्रेत होते हैं या फिर कोई आत्मा होता है, वो आत्मा एक ख़ास चीज़ में बंधा हुआ होता है। जैसे कि मान लेते हैं मुझे एक गुड्डा बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, कोई एक खिलौना है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर मेरी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, फिर मैं अब भूत बन चुका हूँ। तो भूत बनने के बाद जीवित रहते हुए जो गुड़िया या फिर खिलौना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, मैं उस खिलौने में मेरी जो आत्मा है वो बंध जाएगी, फिर वो खिलौना जहाँ जहाँ जाएगा मैं उसके साथ साथ जाऊँगी। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिखाया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं क्या सही है क्या गलत है क्या लॉजिकल है, लेकिन ऐसा दिखाया जाता है। तो बहुत हद तक यहाँ पे भी आप लोग ऐसा कह सकते हो कि ये जो भूत है या फिर विच है इसका उस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो एक ग्रे कैट से जुड़ी हुई है, एक पैडक से जुड़ा हुआ है, और तीसरा पता नहीं किससे जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से तीनों जो है सो अपने अपने जगह जाने के लिए रेडी हो जाती हैं, और सभी तीनों जाते जाते एक जो है सो लाइन तीनों आपस में एक साथ बोलती है, कहती है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। ये एक लाइन है, तीनों आपस में कहती हैं। ये कहते हैं फेयर इज फाउल, फेयर का मतलब होता है कि अच्छा, फेयर का मतलब जो क्या होता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं सब ईमानदारी पूर्वक होंगी, सही तरीके से होंगी, इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और फाउल का मतलब होता है कि आप किसी को ठग रहे हो, किसी के साथ धोखा कर रहे हो, छल कर रहे हो, तो ये होता है फाउल का मतलब। अब यहाँ पे कहते हैं फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया है, दोनों जस्ट अपोजिट आइडिया है। फेयर इज फाउल मतलब जो अच्छा है, जो बहुत ही सही तरीका है, वही क्या है, अपने आप में धोखा है, छलबाजी है, और जो छलबाजी है वही अच्छा है। मतलब कि यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप सही करने जाओगे तो आपके साथ क्या होगा, छलबाजी होगा, और अगर आप छलबाजी करने जाओगे तब आपके साथ क्या होगा, सही होगा। यानी छलबाजी करना ही सही है, लोगों को ठगना ही सही है। और फिर इनका अगला सेंटेंस है होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। होवर का मतलब होता है आकाश में मंडराना, जैसे आप ड्रोन वगैरह देखते होगे, जब ड्रोन आकाश में जाती है फिर वो एक ही जगह पे मंडराता है, ठीक है। या फिर आप वो देखे होगे जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जब वो उड़ के आती हैं तो अक्सर आपके आंखों के सामने एक ही जगह पे वो मंडराते रहती हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी को होवर कहते हैं। और ये कहती हैं होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। ये जो तीनों विचेस हैं ये आकाश में मंडराने के लिए निकल जाती, मतलब अपने अपने जगह जाने के लिए जाती हैं। कहाँ से, फॉग और फिल द एयर से, मतलब कि जो हवा है वो बहुत ज़्यादा गंदा है और वहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, फॉग हैं। फॉग का मतलब क्या होता है, फॉग का मतलब क्या होता है, कुहेसा। जो सुबह में आप लोग देखते होगे ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा कुहेसा गिरता है, तो उसको हम लोग फॉग कहते हैं। तो एक तरीके से फिर से नेगेटिव सेटअप बनाने की कोशिश की गई है कि बहुत ज़्यादा कुहेसा है और उस कुहेसे के बीच में एक तो बहुत ज़्यादा गंदी हवा है,
मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, फिर आप लोग सोच सकते हो कि वो सेटअप कैसा होगा। और निश्चित रूप से ये जो विचेस चूँकि बोल रही हैं तो इनको सारी निगेटिव चीज़ ही पसंद आएंगी, सारी डार्क चीज़ें ही पसंद आएंगी, इसलिए तो ये कहते हैं कि छल ही सही है। और सही अगर आप करने जाओगे तो आपके साथ छल होगा, और अगर आप छल करने जाते हो तो आपके साथ सारी चीज़ें सही होंगी। तो विचेस हैं, आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे इससे, मॉरल वैल्यूज़ तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। तो इस तरीके से ये कहती हैं और तीनों स्टेज से चली जाती हैं। एक्जिएंट ये आर्किक फॉर्म है एग्जिट का, इसका मतलब होता है एग्जिट। तो ये था आपका सीन 1 जिसमें तीनों विचेस स्टेज पे आती हैं और आपस में बातें करती हैं। अब अगर हम लोग देखें तो सेकेंड एक्ट में क्या होता है, कैंप नियर फॉर्स। अब यहाँ पे एक जगह है फॉर्स, ये एक टाउन है स्कॉटलैंड में। तो इस टाउन के अंदर जो है सो एक कैंप देखने को मिलता है। कैंप क्या होता है, कैंप वो जगह होता है जहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से आधे किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर कोई एक युद्ध चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे सिपाही आपस में युद्ध कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि दिन में अगर युद्ध कर रहा है तो जैसे ही सूर्यास्त होता था युद्ध बंद कर दिया जाता था और कहा जाता था कि आगे का युद्ध कल करेंगे। तो वहीं से थोड़ा सा दूर पे एक कैंप बनाया जाता था। कैंप यानी कि बहुत सारे टेंट गाड़ के वहाँ पे बहुत सारे सैनिक जो है सो रहेंगे, वहीं पे रात भर सोएंगे और दोबारा से सुबह होकर वहाँ पे युद्ध लड़ने जाएंगे। तो उसी प्रकार से पास में जब कहीं युद्ध चल रहा होगा तो एक कैंप बनाया गया है, और ये जो कैंप है ये फॉर्स शहर के किनारे बनाया गया है, ठीक है। अब इस कैंप के अंदर क्या होता है, अलार्म विदिन, एक अलार्म गूंज रहा है। मतलब पहले अलार्म कैसे होता था, ढोल बजाकर लोगों को संकेत दिया जाता था। तो अंदर में एक अलार्म बज रहा है और तभी वहाँ पे अंदर आते हैं डंकन। या फिर एक और अलार्म होता है, जैसे राजा महाराजा जब जो है सो कहीं पे आते हैं तो उससे पहले अनाउंस किया जाता है कि सावधान महाराज पधार रहे हैं। तो इस तरीके के अलार्म का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पे चूँकि राजा अंदर आ रहा है, डंकन अंदर आ रहा है, तो इसलिए जो है सो यहाँ पे अलार्म सुनाई देता है। हो सकता है कि अलार्म कोई ढोल बजा कर दिया जा रहा हो या फिर कोई चिल्लाकर बता रहा हो कि राजा आ रहे हैं। तभी वहाँ पे डंकन आता है, उसका बड़ा बेटा मैल्कॉम आता है, उसका छोटा बेटा डोनाल्बेन आता है, लेनॉक्स आता है। लेनॉक्स कौन है, लेनॉक्स हम लोगों ने देखा था कि एक नोबलमैन है, एक अधिकारी है। नोबलमैन मतलब समझ सकते हो, या तो वो कोई बहुत बड़ा व्यापारी होगा या फिर कोई बहुत बड़ा अधिकारी होगा। तो वो अपने अटेंडेंट्स के साथ राजा के साथ अंदर आता है और ये सारे लोग जो है सो एक ब्लीडिंग सर्जेंट से मिलते हैं। सर्जेंट क्या होता है, जैसे कि सर्जेंट एक रैंक होता है। जब आप लोग आर्मी में देखोगे तो आर्मी में अलग अलग रैंक होते हैं। जैसे अभी के कंटेक्स्ट में देखोगे तो कैप्टन होता है, कैप्टन से ऊपर भी अलग अलग पोस्ट होते हैं। तो उसी प्रकार से पहले जो है सो एक सर्जेंट होता था। सर्जेंट क्या होता है, एन ऑफिसर विथ अ लो पोजीशन इन द आर्मी। सर्जेंट एक ऑफिसर होता है जिसका पोजीशन लो पोजीशन होता है। जैसे पुलिस के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग कहें तो वहाँ पे इंस्पेक्टर जो है सो एक लोअर पोजीशन होता है, ठीक है, या फिर सब इंस्पेक्टर कह लो, एसआई, वो एक लोअर पोजीशन होता है पुलिस के अंदर। उससे ऊपर अब अगर हम लोग देखें तो एसपी होते हैं, एसपी के नीचे डीएसपी होता है, डीएसपी के ऊपर एसपी होता है, एसपी के ऊपर फिर आईजी होता है, डीआईजी होता है। तो इस तरीके से अलग अलग टॉप लेवल तक जाता है। तो वहीं पे यहाँ पे जो सर्जेंट है ये एक लोअर लेवल का आर्मी में ऑफिसर होता है सर्जेंट। तो ये राजा, उसका बड़ा बेटा, ये सब मिलने आए हैं। किससे मिलने आए हैं, एक सर्जेंट से मिलने आए हैं जो पूरी तरीके से खून से लथपथ है, मतलब खून उसका बह रहा है। डंकन कहता है, जो राजा है वो कहता है, व्हाट ब्लडी मैन इज दैट, ही कैन रिपोर्ट एज सीम्स बाय हिज प्लाइट ऑफ द रिवॉल्ट द न्यूएस्ट स्टेट। ये जो डंकन है ये कहता है कि ये आखिर कौन है ब्लडी मैन, मतलब जिसका इतना ज़्यादा खून बह रहा है, ये व्यक्ति आखिर है कौन, ठीक है। ही कैन रिपोर्ट मतलब ये अपनी दशा से, जिस तरीके से इसके शरीर से खून बह रहा है, ये रिपोर्ट कर सकता है। क्या रिपोर्ट कर सकता है, मतलब ये बता सकता है। एज सीम्स बाय हिज प्लाइट, मतलब इसकी जो दुर्दशा है, इसके शरीर से जो पूरा खून बह रहा है उससे ये बता सकता है। क्या बता सकता है, ऑफ द रिवॉल्ट द न्यूएस्ट स्टेट, कि मतलब जो रिवॉल्ट चल रहा है, वहाँ पे जो युद्ध चल रहा है उसका अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये अपनी दुर्दशा से बता सकता है।
As seems by his plight, he can report as seems by his plight of the revolt the newest state. रिवॉल्ट यहाँ पे क्यों कहा गया है युद्ध को? तो रिवॉल्ट इसलिए कहा गया है, ये हुआ क्या था कि जो युद्ध चल रहा होता है उसमें राजा के अंदर का ही कोई एक व्यक्ति रहता है जो दुश्मन सेना के साथ मिलकर राजा के ऊपर अटैक कर देता है। मतलब इसका कोई एक गढ़भेदी होता है, वो किसी दुश्मन से मिल जाता है और उसके यहाँ अटैक कर देता है, तो इसलिए इसको रिवॉल्ट बोला गया है। तो ये कहता है कि ये जो ब्लडी मैन है जिसका इतना ज़्यादा खून बह रहा है, इतने बुरी तरीके से ये जख्मी है, ये अपनी दुर्दशा से पूरी तरीके से हमें बता सकता है कि आखिर उस युद्ध में अभी चल क्या रहा है और वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट क्या है। ठीक है, अब चूंकि ये इतनी बुरी तरीके से जख्मी है तो निश्चित रूप से जो युद्ध है वो थोड़ा सा बदतर हालात में चल रहा है। तो जो मैलकॉम है वो कहता है, मैलकॉम कौन है? राजा का बड़ा बेटा है। वो कहता है दिस इज़ द सर्जेंट who like a good and hardy soldier fought against my captivity. Hail brave friend. मैलकॉम राजा का बड़ा बेटा कहता है दिस इज़ द सर्जेंट, ये वही सर्जेंट है, ये वही ऑफिसर्स है। who like a good and hardy soldier fought, जो एक अच्छे सिपाही और सशक्त सिपाही के तौर पे युद्ध लड़ा। यहाँ पे सशक्त कहने का मतलब क्या है या फिर हार्डी सोल्जर कहने का मतलब क्या है? हार्डी सोल्जर का मतलब ये होता है कि कठिन परिस्थितियों के होने के बावजूद कोई एक व्यक्ति डटा हुआ रहता है, युद्ध करते रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हार्डी कहा जा सकता है। मतलब कि जो सिचुएशंस हैं वो बहुत ही ख़राब है, बदतर हालात हैं, बहुत ही ज़्यादा स्थिति ख़राब है, ठीक है, और इसके बावजूद वो जो है सो डटा हुआ रहता है, तो ऐसे लोगों को हार्डी कहा जा सकता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि मैलकॉम कहता है कि ये वही सिपाही है जो मेरे कैद के खिलाफ वहाँ पे युद्ध लड़ रहा था। ऐसा लग रहा है कि जो दुश्मन सेना है उसने मैलकॉम को पकड़ लिया था, उसको कैद में ले जा रहा था, मतलब कैप्टिविटी, उसको पकड़ के कहीं ले जा रहे थे। तभी वहाँ पे ये सर्जेंट आता है और ये उन सारे लोगों से युद्ध करता है और मैलकॉम को छुड़ाता है। इसीलिए तो मैलकॉम यहाँ पे कहता है हेल ब्रेव फ्रेंड हेल। हेल मतलब कि उसका जयकारा लगाता है, मेरे महान दोस्त, मेरे बहादुर दोस्त, हेल तुम्हारा जयकारा हो। से टू द किंग द नॉलेज ऑफ द ब्रॉयल एज दाउ डिडस्ट लिव इट। ब्रॉयल का मतलब क्या होता है? शीन ऑफ फाइटिंग मैन। ब्रॉयल मतलब कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में युद्ध कर रहे हों। तो ये कहता है उस सर्जेंट से कि आप बताओ, राजा को बताओ कि वहाँ पे युद्ध के अंदर अभी लेटेस्ट क्या चल रहा था, तुम जब वहाँ से आए तो तुमने वहाँ पर क्या क्या देखा, राजा को तुम वो सारी चीज़ें बताओ। तो जो सर्जेंट है वो कहता है डाउटफुल इट अस्टूड। डाउटफुल इट अस्टूड, जो युद्ध है वो डाउटफुल के अवस्था में है। डाउटफुल के अवस्था में है मतलब क्या? वहाँ पे कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतने वाला है, ठीक है, तो इसलिए जो युद्ध है वो डाउटफुल के स्टेट में है। एज टू स्पेंट स्विमर्स दैट डू क्लिंग टुगेदर, एज टू स्पेंट स्विमर्स दैट डू क्लिंग टुगेदर एंड चॉक दियर आर्ट। जैसे जो दो अलग अलग स्विमर्स होते हैं, जब दोनों बहुत ज़्यादा देर स्विमिंग कर लेते हैं, फिर दोनों बुरी तरीके से थक जाते हैं, फिर दोनों क्या होता है आपस में चिपक जाते हैं। मतलब दोनों आपस में चिपक जाते हैं और दोनों जो है सो अपनी आर्ट लगातार दिखा रहे होते हैं लोगों को थकने के बावजूद। तो कुछ वैसा ही स्थिति वहाँ पे भी है। मतलब जो दोनों पक्ष है, चाहे वो राजा का पक्ष हो या फिर राजा के विरोधी का पक्ष हो, वो दोनों जो है सो वहाँ पे युद्ध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों बहुत ज़्यादा वहाँ पे थके हुए हैं, टायर्ड हैं, और फिर भी दोनों अपनी कला को दिखाने में के लिए मजबूर हैं। द मर्सिलेस मैकडोनल्ड, अब यहाँ पे मैकडोनल्ड नहीं है, मैकडोनवाल्ड, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैकडोनल्ड नहीं, मैकडोनल्ड नहीं है, ये कौन है? मैकडोनवाल्ड, मैकडोनवाल्ड। अब यहाँ पे मैकडोनवाल्ड कौन है? ये एक रेबल है, रेबल है। रेबल का मतलब क्या होता है कि रेबल राजद्रोही, ठीक है। रेबल का मतलब होता है कि कोई एक सिस्टम चल रहा है, उसको वो सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा है, फिर वो चाहता है कि सिस्टम में चेंजेस हो, इसके लिए वो विद्रोह कर देता है, तो ऐसे लोगों को रेबल कहते हैं। तो यहाँ पे जो मैकडोनल्ड है ये एक रेबल है जो अपनी एक पूरी आर्मी लेकर आ जाता है राजा के खिलाफ। मतलब बेसिकली ये राजद्रोह करता है राजा के खिलाफ और पूरी अपनी एक आर्मी लेकर आ जाता है पड़ोसी राज्यों की सहायता से, ठीक है। तो मैकडोनवाल्ड जो है सो यहाँ पे
the merciless MacDonald worthy to be a rebel, for to that the multiplying villainage of nature do swarm upon him from the western isles of Kerns and Gallowglasses is supplied। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, फिर हम लोग इसका पूरा मीनिंग देखेंगे। विलेनीज का मतलब क्या होता है? विलेनीज जैसे आप लोग मूवीज़ में देखते हो विलेन होता है, तो उस विलेन का एक खास नेचर होता है। जैसे विलेन को देखोगे वो मुस्कुराएगा नहीं, वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करेगा, वो जरा सी गलती पे लोगों को जान से मार देगा। तो ये सारे उसमें जो है सो उसका नेचर होता है, क्रिमिनल जैसा नेचर होता है, और लोग बहुत ही गर्व से कहते हैं मैं तो विलेन हूँ, विलेन। तो ये सब बेवकूफ़ी है। मतलब तो जो विलेनीज है उसका मतलब क्या है कि विलेन वाला सारा नेचर, क्रिमिनल नेचर जो है सो किसी में अगर होगा तो वो विलेनीज है, ठीक है। स्वर्ण का मतलब होता है कि जैसे आप लोग मधुमक्खियाँ देखते हो, पूरा एक झुंड उड़ के आता है, दैट इज स्वर्ण। कर्न्स का मतलब क्या है? कर्न्स का यहाँ पे मतलब होगा जो आयरलैंड के कुछ सिपाही थे। देखो सिपाहियों का अलग अलग ग्रुप होता था। एक ग्रुप था जो पैदल चलकर कहीं पे अटैक करता था, एक ग्रुप होता था जो घुड़सवारी करके जो है सो लोगों पे अटैक करता था। तो कर्न्स वैसे सिपाही को कहेंगे जो पैदल चलकर जो है सो अटैक करते हैं, ठीक है। वहीं पे जो एक गैलोग्लासेज है, गैलोग्लासेज का मतलब क्या होगा? अब देखो गैलोग्लासेज का मतलब होता है, जैसे इस तरीके से समझो, अभी मान लेते हैं आपके साथ कोई घटना होती है, ठीक है, और आपको पुलिस के पास जाना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सरकार के द्वारा जो पुलिस सिस्टम बनाया गया आप उसके पास जाओ, ठीक है, ये हो गया आपका पुलिस सिस्टम। वहीं पे दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि कुछ आजकल प्राइवेट जो है सो ऑफिसर्स होते हैं या फिर प्राइवेट लोग होते हैं जिसको आप कुछ पैसे दोगे और बदले में वो आपकी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर देगा। एक तरीके से कह लो कि एक सरकारी सीआईडी हो गया और दूसरा एक प्राइवेट सीआईडी हो गया। प्राइवेट सीआईडी को आप पैसे दोगे, फिर वो आपका काम करेगा। तो उसी प्रकार से वहाँ पे क्या होता है, मर्सिनरी चलता है। जैसे आपको कहीं पे अटैक करना है, ठीक है, मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल हमें पाकिस्तान पे अटैक करना है, ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि एक तो इंडियन आर्मी वहाँ पे अटैक कर सकती है, और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि हम किसी मर्सिनरी को हायर करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई छोटा मोटा देश है, कोई भी एक देश हो सकता है, मान लेते हैं इराक कोई एक देश है, ठीक है, इराक देश है। अब हम क्या करते हैं, इराक में कोई एक कंपनी है, उस कंपनी का पर्पस ही यही है कि वहाँ पे हज़ारों सिपाही हैं, ठीक है, वो सिपाही लोगों से पैसे लेते हैं और लोग जो उन्हें काम देते हैं वो करते हैं। तो भारत सरकार जो है सो इराक के उस कंपनी को कॉन्टैक्ट करती है और भारत सरकार उससे कहती है कि मैं आपको 1 मिलियन रुपया दूंगा, 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपया दूंगा, और आपका काम यह है कि आप 10 सिपाही लेकर जाओ और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करो, या फिर पाकिस्तान में जाकर आप ये करो। तो ये होता है बेसिकली मर्सिनरी का काम। 10 सिपाही या फिर 100 सिपाही या फिर 1000 सिपाही लेकर आप जाओ और वहाँ पे आपको ये काम करना है। तो मर्सिनरी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप किसी प्राइवेट सोल्जर कंपनी को आप कुछ पैसे दिए या फिर कुछ भी आपने दिया उससे, या फिर उससे आपने कुछ डील किया और उसको लेकर आपने कहीं पर अटैक किया। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की डीलिंग्स होती हैं। जैसे कि एक डीलिंग ये हो सकता है कि हम लोग दोनों मिलकर कहीं पे अटैक करेंगे और वहाँ पे भी जितना भी पैसा हम लोग लूटेंगे उसमें आधा पैसा आप ले लेना, आधा हम ले लेंगे। और दूसरा अटैक ये होता है कि हम आपको पहले ही इतना रुपया दे रहे हैं, आप वहाँ पे चलना और मेरे साथ युद्ध करना। तो इस तरीके की अलग अलग डीलिंग्स होती हैं इसमें, ठीक है। तो इसको कहते हैं मर्सिनरी। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, देखो अब देखो एक बात तो क्लियर हो गया है कि यहाँ पे जो युद्ध चल रहा है राजा डंकन का, वो मैकडॉनवाल्ड से चल रहा है और मैकडॉनवाल्ड के द्वारा बुलाए गए लोगों से चल रहा है। द मर्सीलेस मैकडॉनवाल्ड वर्दी टू बी अ रेबल। मैकडॉनवाल्ड जो है वो मर्सीलेस है, मतलब दया विहीन है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई दया नाम की चीज़ है ही नहीं। वर्दी टू बी अ रेबल, और मतलब लगता है कि उसका जो नेचर है उसे लगता है कि ये वाकई में राजद्रोह करने वाला व्यक्ति है। मतलब आप किसी गुंडा को देखो, आप किसी विलेन को देखो और वो बहुत ज़्यादा खूंखार हो, फिर आप कहोगे नहीं ये गुंडा बनने के ही लायक है, ठीक है। जैसे संजय दत्त की कुछ मूवीज़ आप देखोगे तो आप कहोगे नहीं ये हीरो से ज़्यादा अच्छा गुंडा में ही लगता है, मतलब विलेन में ही लगता है, इसका जो विलेन का रोल होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर आप कहोगे संजय दत्त वर्दी टू बी अ विलेन, मतलब उसका नेचर ऐसा है कि वो गुंडा या फिर विलेन बनने जैसा ही
बनने में ही अच्छा लगता है। तो मैकडॉनल्ड का जो नेचर है या फिर जिस तरीके से ये मर्सीलेस है, मतलब लोगों पे दया नहीं करता है या फिर खुल के विद्रोह करता है या फिर जो भी विलेन का नेचर हो सकता है वो सब इसके अंदर है, तो ये राजद्रोह करने वाला ही व्यक्ति लगता है। For to that the multiplying villainage of nature do swarm upon him from the western isles of Kerns and Galloglasses is supplied। देखो इसका नेचर तो हो गया विलेनेज, मतलब विलेन वाला सारा नेचर है इसमें। और ऐसा नहीं है कि बस एक दो नेचर है, मल्टीप्लाइंग नेचर, बहुत सारे नेचर्स हैं। और इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा झुंड लोगों का इसके साथ आता है, सपोर्ट आता है। कहाँ से? वेस्टर्न आइल से, मतलब पश्चिम तरफ जो आइलैंड्स हैं, पश्चिम में जो आइलैंड्स हैं वहाँ से इसके सपोर्ट में बहुत सारे लोग आते हैं। कौन कौन आता है? कर्न्स, पहला तो कर्न्स यहाँ पे कौन है? जो आयरिश फुट सोल्जर्स हैं, आयरलैंड के सोल्जर्स हैं, वो सभी आते हैं इसके सपोर्ट में, मैकडॉनल्ड के सपोर्ट में। उसके अलावा गैलोग्लासेज वहाँ पे आते हैं। गैलोग्लासेज कौन है? आयरिश सोल्जर्स के साथ साथ वहाँ पे जो कुछ मर्सिनरीज सोल्जर्स हैं वो भी इसके सपोर्ट में आते हैं। सप्लाई किया गया ये सारी चीज़ें इसको, इसीलिए तो ये अपना एक आर्मी लेकर आया है। And fortune on his damned quarrel, a smiling, showed like a rebel's horde, but all is too weak. And fortune, अब ये सारी चीज़ें तो हैं, इसके सपोर्ट में इतने सारे लोग हैं। इसके साथ साथ जो फॉर्चून है, फॉर्चून कहने का मतलब फॉर्चून कहने का क्या मतलब है यहाँ पे? फॉर्चून का मतलब जो भाग्य है, वो भाग्य भी पूरी तरीके से इसके सपोर्ट में है। ऑन हिज डैम्ड क्वेरल, ऐसा लग रहा है कि ये जो रिबेल किया है, ये जो राजद्रोह किया है, इसके सपोर्ट में पूरा का पूरा इसका भाग्य खड़ा है। मतलब इसका जो भाग्य है या फिर इसका जो किस्मत है वो भी पूरी तरीके से इसको सपोर्ट कर रहा है, इसका ये राजद्रोह या फिर कह लो विद्रोह। इसके ऊपर मुस्कुरा रहा है। मुस्कुरा रहा है कहने का मतलब कि इसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है इसके किस्मत के द्वारा। शोड लाइक अ रेबल्स होड़। होड़ का मतलब क्या होता है आपको ऑलरेडी पता होगा। होड़ का मतलब क्या होता है, होड़ का मतलब प्रोस्टिट्यूट या फिर रखैल कह लो या फिर हाँ यही सब होता है। तो यहाँ पे जो किस्मत है उसको बताया जा रहा है कि किस्मत इस तरीके से उसका साथ दे रही है जैसे कि मानो ये किस्मत जो हो उस व्यक्ति की रखैल हो, मतलब पूरे वश में कर रखा है उस व्यक्ति ने अपने किस्मत को। तो इस तरीके से उसके विद्रोह को, उसके राजद्रोह को जो है सो किस्मत सपोर्ट कर रही है। और इतना सब होने के बावजूद, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद ऑल इज़ टू वीक, उसके लिए वो कमज़ोर पड़ रहा है। मतलब उसके पास सपोर्ट है आयरलैंड का, आयरलैंड से सिपाही उसके पास आए हैं, मर्सिनरीज आया है उसके सपोर्ट में, किस्मत उसको लगातार साथ दे रहा है, लेकिन फिर भी वो कमज़ोर पड़ रहा है। क्यों कमज़ोर पड़ रहा है? क्योंकि वहाँ पे ब्रेव मैकबेथ, वेल ही डिजर्व्स दैट नेम, क्योंकि वहाँ पे मैकबेथ है। और मैकबेथ मतलब इतना बहादुर है कि हम लोग मैकबेथ को मैकबेथ कहते हैं। ये पूरी तरीके से वो नाम डिज़र्व करता है। और जो भी इज्जत दिया जाता है मैकबेथ को, जितनी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है मैकबेथ को, वो सभी मैकबेथ डिज़र्व करता है। और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। जैसे अगर आप लोग मूवीज़ देखोगे तो मूवीज़ में क्या होता है, जो हीरो होता है उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दिया जाता है। हीरो किसी से भी कुछ कहेगा तो वो उसके बात को मानता है और उसका जो ऑरा होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई दिखाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही मैकबेथ को, और ये कहता है व्यक्ति कि मैकबेथ मतलब महान मैकबेथ या फिर कह लो ब्रेव, बहादुर मैकबेथ, जिस तरीके से लोग उसकी इज्जत करते हैं, मैकबेथ पूरी तरीके से उसे डिजर्व करता है। डिसडेनिंग फॉर्चून, मैकबेथ वहाँ पे आता है, उसके सामने आता है पूरी तरीके से तिरस्कार करते हुए। किसका? फॉर्चून का। फॉर्चून यानी कि भाग्य का तिरस्कार करता हुआ। भाग्य तिरस्कार करना मतलब कि आप किसी चीज़ को मानने से इनकार कर देते हो। जो भाग्य है, किस्मत है, वो लगातार मैकडॉनल्ड को सपोर्ट कर रहा है, उसके पक्ष में है, चीज़ें लगातार उसकी तरफ जा रही हैं। लेकिन मैकबेथ पूरी बहादुरी के साथ सामने आता है और वो किस्मत को मानने से इनकार कर देता है। विथ हिज ब्रैंडिश्ड स्टील, ब्रैंडिश्ड स्टील मतलब कि स्टील का बना हुआ जो तलवार होता है वो उसको लहराते हुए वहाँ पे आता है, पूरे कॉन्फिडेंस में आता है। विच स्मोक्ड विथ ब्लडी एग्जीक्यूशन, और उस तलवार को देख के लगता है कि मानो इसको पूरी तरीके से, जैसे स्मोक का मतलब क्या होता है? धुआं, ठीक है। कहीं पे आग लगता है तो वहाँ पे स्मोक
उठता है, धुआं उठता है, तो उसके तलवार को देख के लगता है कि इसको बार बार उस धुएं में ले जाया गया है। कौन से धुएं में? खून से बना हुआ धुएं में उसे ले जाया गया है बार बार। मतलब वो जो मैकबेथ का तलवार है, स्टील है, वो पूरी तरीके से खून से लथपथ है। Like Valor's minion carved out his passage till he faced the slave. Like Valor's minion. Valor's का मतलब क्या होता है? ग्रेट करेज। Valor's का मतलब कि बहुत ज़्यादा कोई वीर है, बहादुर है। Minion का मतलब उसका नौकर। Carved out his passage. अब देखो, जब मैकबेथ आगे बढ़ता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई महान ग्रेट करेज, जैसे मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो उसका काम ही है ग्रेट करेज, मतलब वो बहादुरी से भरा हुआ है, वो वीरता से भरा हुआ है, उसमें बिल्कुल भी डर नहीं है उस व्यक्ति में। वो व्यक्ति खुद जो है सो मैकबेथ का नौकर हो, मिनियन हो, और वो खुद मैकबेथ के आगे आगे चल रहा हो और उसका रास्ता बना रहा हो। कार्व का मतलब होता है जैसे आप एक पेंसिल लेते हो और पेंसिल से आप अपने बेंच पे या फिर टेबल पे कोई एक कार्विंग करने लगते हो, आप उसमें मतलब थोड़ा सा दबा कर उसमें लिखने लगते हो, तो उसको बोलते हैं कार्विंग। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये जो वीरता है या फिर बहादुरी है, ये मैकबेथ का नौकर है और वो नौकर मैकबेथ के आगे आगे चल रहा है और मैकबेथ के लिए पूरा रास्ता तैयार कर रहा है। और ये रास्ता तब तक आगे बनता रहता है जब तक मैकबेथ उस नौकर से नहीं मिल लेता। कौन से नौकर से? मैकडॉनवाल्ड से। मैकडॉनवाल्ड ही तो वो मेन विद्रोही है जो इन सारी चीज़ों का जड़ है। Which never shook hands nor bade farewell to him till he unseamed him from the nave to the chaps. अब देखो यहाँ पे जो एक वर्ड है unseamed, इसका मतलब होता है rip apart, मतलब किसी चीज़ को दो अलग अलग भागों में बांट देना। तो यहाँ पे आगे कहते हैं कि which never shook hands, मैकबेथ जो है सो मैकडॉनवाल्ड से हाथ मिलाने के लिए आगे नहीं जाता है, उससे जरा सा एक शब्द बात तक नहीं करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ना ही उसे अलविदा कहता है, कुछ नहीं। देखो, जो मैकडॉनवाल्ड था वो भी अपने आप में क्या है, एक नोबलमैन होता है स्कॉटलैंड का, और मैकबेथ तो था ही नोबलमैन, तो दोनों का पहले से जान पहचान होगा वहाँ पे, लेकिन अभी उसने विद्रोह कर दिया है तो दोनों अपोजिट टीम में हो गए। तो ये कहता है कि मैकबेथ उससे एक बार हाथ मिलाने भी नहीं जाता, या फिर उससे एक सेंटेंस या फिर एक शब्द बात भी नहीं करता है, ना ही उससे कुछ अलविदा कहता है। सीधा मैकबेथ उसके पास जाता है और क्या करता है? टिल ही अनसीम्ड हिम, उसे रिप अपार्ट, मतलब दो अलग अलग भागों में बांट देता है, मतलब उसका जो शरीर है उसको बीच से काट देता है। हिम फ्रॉम द नेव टू द चैप्स, नेव टू द चैप्स मतलब क्या? चिन से स्टार्ट करो और नाभि तक, नेवल तक जो है सो आप किसी को नेव टू द चैप्स, मतलब कि मैकबेथ उसका क्या करता है, यहाँ चिन से स्टार्ट करता है और यहाँ नाभि तक उसको दो अलग अलग भागों में बांट देता है। अगर हम लोग इसको सिंपल शब्दों में कहें तो यहाँ से वो तलवार मारता है और तलवार से पूरा शरीर जो है सो ऐसे लेफ्ट और राइट दो अलग अलग भागों में काट देता है पूरी तरीके से, ठीक है। एंड फिक्स्ड हिज हेड अपॉन आवर बैटलमेंट्स, और वो जो व्यक्ति था मैकडॉनवाल्ड, उसके शरीर को क्या करता है, उसके शरीर को तो दो भागों में बांट दिया और फिर ये जो गर्दन है इसको काट के वो उसको क्या किया गया, जो दीवार है दीवार पे उसको टांग दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है सो वहाँ पे सर्जेंट बताता है डंकन को। अब डंकन कहता है, राजा कहता है, ओ वैलियंट कजन वर्दी जेंटलमैन, मतलब उसकी तारीफ करता है, वैलियंट कजन वर्दी जेंटलमैन। जो मैकबेथ है वो पूरा का पूरा जेंटलमैन है या फिर बहुत ही अच्छा मतलब व्यक्ति है, पूरा वर्दी है, जो भी उसको इज्जत दी जाती है उसको वो पूरे उस लायक है, और फुल ऑफ करेज है, मतलब पूरा करेज से भरा हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।